Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine by the grace of gracious Allah. May Allah protect all of us from this pandemic. My name is Khalid Jat, and I am going to discuss the mass measuring instruments in today's lecture. And the topics of today's lecture will be the use and the construction of the lever and electronic balance. At the end of my lecture, I will also compare that from these mass measuring instruments, which one will be more precise and more accurate. So let's start. The first one is the beam balance. The use and the construction of this beam balance had been discussed in the previous lecture. So to save time, I will directly come towards the lever balance. I have drawn two shapes, two specimens of this lever balance. One is the most modern shape and the other one is the ancient shape. Lever balance is invented by Archimedes in 3rd century BC. First, I am going to discuss the construction of the ancient specimen. This is the scale on which you have to put the object whose mass to be measured. It is connected with some immovable and the movable levers. The movable lever is this one. It can be moved from the point here and from that point here, which I have shown by the dots. Immovable lever is attached to some fixed mass. If we put any object on this scale pen, its weight will be increased and it will go down due to gravity. By the help of this movable joint, it will be lowered and the immovable lever will be raised a bit. Here, a circular scale is attached with the system to measure, to give the reading, the actual reading of this object that you have put here. Okay. Now, the lever balance, which is the modern lever balance. It is constructed upon a beam which is movable beam. It can be moved up and down. It carries two scale pens. In one pen you will place the object whose mass to be measured, and other pen you will put some standard masses. These are the known masses and these will be the unknown masses. अब इनके मेथड्स की तरफ आते हैं कि भी ये कैसे जो है वो रीडिंग आपको देता है. इसके लिए मैंने जो ऑब्जेक्ट आज की एक्टिविटी का लिया हुआ है वो है एक कॉइन जिसका मैथ मैं मेजर करने जा रहा हूं. एंड फ्रॉम दिस कॉइन आई विल कंपेयर ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड विल यू गिव द बेस्ट वन फ्रॉम ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स. इफ यू पुट द 5 rupee coin here, let's suppose it is giving the mass of this coin is as 3.2 grams because it cannot measure more than 10th part of a gram. So there will be just one significant figure after the decimal. Okay? यानी ये 1 ग्राम के 10वें हिस्से से ज्यादा आपको रीडिंग नहीं दे सकता. That's why the least count of this instrument is 0.1 gram, and if we measure it in the milligrams, it will be 100 milligrams. Next, keep that the least count in your mind, that more the significant figures after the decimal, the more precise the instrument will be. It will be the core point of my today's lecture. Now, this one is named as electronic balance. It is the digital balance in the most modern form, the most precise, the most accurate balance.
There are different ranges that come in the market. It comes in the milligram range, it comes in the gram range, it comes in the kilogram range. Ranges could be different. Ranges different इसलिए भी हैं कि let's suppose हम ज्वेलर्स की तरफ जाते हैं। ज्वेलर्स के लिए जो है वो रीडिंग लेनी होती है, वो बहुत ही छोटे ग्राम्स में 12 ग्राम्स 10 ग्राम्स तोला माशा इस तरह की जो अपनी जो उनके जो अपने सिस्टम्स हैं बनाए हुए, तो उसके लिए उनको कैसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? उसको बहुत ही सेंसिटिव किस्म का इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो मिलीग्राम रेंज तक आपको दे सकता हो। यानी पॉइंट के बाद आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर मैं इसी को बात करूं ज्वेलर्स की, तो वो पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वो जाएगा। अच्छा, अब ऊपर शॉप्स में जो, चूंकि ये हवा के प्रेशर से भी इसकी रीडिंग जो है वो चेंज हो सकती है, यानी एयर को अंदर उसके पेनिट्रेट करने से रोकने के लिए एक ब्लॉकर लगाया जाता है, और ये क्या है? ग्लास केस, ताकि किसी भी किस्म का हवा का जो प्रेशर है उसकी वजह से जो रीडिंग चेंज होनी है वो भी ना हो। ओके, तो इसको यूज करने से पहले इसके साथ, क्योंकि ये डिजिटल है, इसके साथ पावर सप्लाई अटैच होती है, अदरवाइज आप एक वायर मिलती जो आप बोर्ड में लगाते हैं तो एसी सप्लाई के साथ वो अटैच हो जाता है। तो इस बटन को पुश करते हैं तो ये 0.00 पे, अगर वो लेट्स सपोज अगर ये फुल बैलेंस नहीं पड़ा हुआ तो फिर ये रीडिंग थोड़ी सी चेंज देगा, क्योंकि ये जो पेन है एक तरफ से मतलब झुका होगा, रीडिंग चेंज हो सकती है। तो इसको फुल बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बैलेंसिंग स्क्रूज है जो कि इसके चारों तरफ मौजूद होते हैं, इसकी मदद से इसको जो है वो बैलेंस कर लिया जाता है। पूरा बैलेंस करने के बाद अब आपने जो मैं एक्टिविटी आपको करवाने जा रहा था कि मेरे पास एक कॉइन है जिसका जो मैथ में कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। अब इस मैथ को इसके ऊपर प्लेस करने से इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने मुझे 3.4247 ग्राम्स की रीडिंग दी। इट मींस इट हैड measured thousandth part of a gram. So least count of this instrument will be 0.001 grams, or if I say in the milligram it will be 1 milligram. Now if you want to measure the mass of the same coin from by the help of physical balance, यानी अगर मैं इसे फिजिकल बैलेंस से मेजर करना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए वही कॉइन जो है वो मुझे प्लेस करना है इसके इस पोर्शन में। ठीक है, इसमें कॉइन को निकाल लूं पहले। ये लेफ्ट पैन में मैंने उसको प्लेस किया, उसका मतलब कॉइन। इसके बाद राइट पैन में मैंने प्लेस कर दिया स्टैंडर्ड मैथ्स। अब इसका जो पॉइंटर है और इसका मतलब ये जो मैथ्स मैंने इसके अंदर प्लेस की, इसको मैंने ऐड किया और चेक किया कि कितना मैथ्स मैंने यहां प्लेस किया है, तो वो मुझे कैलकुलेट करके मिला 3.24 grams. There are 2 significant figures after decimal point here. So it has measured 100th part of a gram. अब जरा चेक करें, इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 ग्राम और मिलीग्राम में ये कितना है जी? 10 मिलीग्राम्स। अब सारा कंपैरिजन इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जिसके पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे वो माना जाएगा ज्यादा प्रिसाइज। मीन यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें, वैसे टेक्निकली तो 0.0 तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा, लेकिन एक हिसाब से मैं 100 और 1000 के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो जरा देखें कि पॉइंट के बाद मुझे 2 फिगर्स मिले। यहां मुझे पॉइंट के बाद एक फिगर मिला, इसका मतलब है कि ये 0.1 ग्राम। इधर मुझे पॉइंट के बाद मिले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मतलब 1/1000 ग्राम, 0.001 ग्राम। जिस इंस्ट्रूमेंट ने पॉइंट के बाद मुझे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे अप्लाई यानी दिए हैं, इसका मतलब है कि उसने ग्राम के बहुत नीचे यानी 1000 पार्ट तक जाके मुझे मेजर करके मेजरमेंट दे दी है। सो if I sum up the result of this activity, so it will be this one, that electronic balance will be the most precise and the most accurate balance from beam and the physical balance. अगर हम कंपेयर करें बीम बैलेंस को फिजिकल बैलेंस को, तो जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी देता है।
ओके और इसी वजह से आजकल लिवर बैलेंस का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। आप जितनी भी शॉप्स में जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं, आपको अगर किसी चीज का मैथ लेना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इस वाले बैलेंस के साथ डील करना पड़ता है। ओके सो if you want to measure the mass of an object, you will use electronic balance. It will give you the best reading. Okay? अब इस लेक्चर में अगर कोई आपने को पॉइंट पूछना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आप उसको जो है वो यूज करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।